Before we start, एक छोटा सा quick introduction हो जाए. Before you give your introduction, let me introduce myself. My name is Dr. Johnny Janotra. I am currently working as an assistant professor in Lamrin Tech Skill University, which is in Punjab. I've been working here since last 2 years. Post that, I was working. Yes. Sir, this is Vandana Gautam, and very good afternoon. Good afternoon. Actually, your voice is echoing. Okay, it's echoing. All right. So I would like to request you all to kindly turn off your mic first, and please turn on your cameras. All right. अपना माइक ऑन कर लीजिए, सॉरी कैमरा ऑन कर लीजिए सभी. Very good morning, sir. My name is Ali Akhtar Ali. I have been appointed as a lecturer in Government of Bihar in Class 2 Office at Department of Education and Training in Chhapra. Okay. अपना प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए आप सब. हेलो. हाँ जी, आपका कैमरा तो ऑन करवा लिया मैंने, बट मेरे कैमरा में कुछ दिक्कत आ रही है. Okay, no problem. So before we start, I would like to introduce myself. My name is Dr. Johnny Janotra. As I've already told you, I've been working in Lamrin Tech Skill University since last 2 years. Post that, I was working in Medhavi Skills University, which is in Sikkim. I have completed my PhD from Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University. So that is all about me. So let's start with a brief introduction. Just आपका नाम और आपका current occupation. Good morning, sir. Good morning. Good morning. My name is Amrit Mehta. I am Assistant Professor Sociology in Government College, Shimla, Sanjoli, Himachal Pradesh. All right. Welcome to the class, sir. Ramesh ji. Next. Good morning, sir. My name is Sudeep Kaur. I'm Professor of History, AS College, Khanna. Okay. All right. Next. Good morning, sir. I am Ravinder Kaur Gill. I am a yoga instructor in Government College, Chandigarh. Welcome to the class. Next, please. Good morning, sir. This is Garima Bhardwaj, and I'm working as a principal in a CBSE affiliated school in Mohali. Okay. Welcome to the class, ma'am. Thank you. Next. This is Bharat Mistry. I am retired Vice Principal of Ophthalmic School of Ophthalmic Health Sciences and Medical Demographer, State Population Commission. Okay, welcome to the class, sir. Next. Sir, my name is Ramesh Akbari. I am Senior Optometrist at Anand, Gujarat. And yes, Welcome I to the am class. still practitioner. Okay. Next. Hello. Yes, Good hello. morning, sir. Good morning. Myself, Dr. Naresh. I am from Jalandhar, Philor. I have my own hospital, eye care and dental hospital. All right. Welcome. And to the class. I am doing PhD in ophthalmology. All right. All right. Next. Good morning, sir. Good morning. So my name is Puneet Kaur. Presently, I am working in IGNOU as an academic counselor. All right. Welcome to the class, Puneet ji. Sure. Next. Hello. Hello. Hello, everyone, and good morning, sir.
Good morning. My name is Deepika and I am an advocate practicing at District Court Panchkula in Haryana. All right. Welcome to the class. Thank you, sir. Next. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। Welcome to the class, ma'am. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। All right. Next. Next. All right. I think most of introduction. So let's start the class. So am I audible? Yes, sir. Okay. So जो टॉपिक है नॉट अ टॉपिक जो सब्जेक्ट है आपका दैट इज फिलॉसफी. ओके, नॉट फिलॉसफी, दिस इज रिसर्च. ओके, आई थिंक आपके पास सबके पास सिलेबस है. हाँ सर, सिलेबस है. fine. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. रिसर्च. So कोर्स हमारा दैट इज रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स. ऑलराइट, एंड आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है एंड मोस्ट ऑफ आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो कि क्या टॉपिक्स रहेंगे. सो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक टोटल यूनिट्स क्या क्या हैं. सो योर सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टोटल 5 units, unit A, B, C, D and E. All right. Unit A is about introduction to philosophy. Okay. So we will discuss क्या philosophy होती क्या है. Okay, क्या core concept क्या है philosophy से related, nature and scope. Then we will discuss कि philosophy का role क्या है research में. The second topic is about ethics. What ethics are publication में या research में, academic research में ethics कितना valuable है, क्या place है ethics की. This is all about unit A. Unit B is about scientific conduct, ethics with respect to science and research. Research से related ethics क्या क्या है, intellectual honesty क्या होती है, research integrity क्या है. We will discuss all these things. Then scientific misconduct क्या है, falsification, fabrication, plagiarism. कैसे हम प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द सॉफ्टवेयर व्हिच इज टर्निटिन, उर्कुंड, कॉमनली यूज हो रहे हैं फॉर टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च. जो भी आप रिसर्च करेंगे उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कितना मैटर आपने कहाँ से उठाया हुआ है और कहाँ कितना उसको अपने वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. सो वी विल चेक दैट इन सॉफ्टवेयर. ओके, दैट इज टर्निटिन एंड उर्कुंड. दीज आर द common software which are used by the universities या academic organization. फिर है कुछ open source software tools भी हैं. फिर है redundant publication, कैसे overlapping publication या duplication से related जो issues हैं उनको कैसे resolve किया जाए. We will discuss that. Then next है आपका unit C है is about publication ethics. क्या होते हैं publication ethics, best practices क्या हैं, स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट्स हैं, कुछ अनएथिकल बिहेवियर्स होते हैं. क्या अनएथिकल बिहेवियर्स हैं, वी विल डिस्कस दोस थिंग्स. मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना, एको तो नहीं हो रहा है? Am I audible? Yes sir. Okay. Yes. Perfectly fine. Then violations क्या हैं पब्लिक एथिक्स के, ऑथरशिप एंड कंट्रीब्यूशनशिप या कंट्रीब्यूटरशिप क्या होती है.
देन वी विल डिस्कस कि प्रेडेटरी पब्लिकेशंस क्या हैं या प्रेडेटरी पब्लिशर्स कौन होते हैं, जर्नल्स कौन कौन से प्रेडेटरी। समटाइम क्या होता है कि आप जर्नल आपने एक सर्च किया है, उसमें आप पेपर पब्लिश करना चाहते हो, बट यू विल फाइंड आउट कि वो तो प्रेडेटरी जर्नल है, ओके, जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है बाय यूजीसी और वेब ऑफ साइंस, या स्कोपस इंडेक्स नहीं है, वो एल्सेवियर इंडेक्स नहीं है। सो वी विल डिस्कस दोस थिंग्स। ये आपका आ गया यूनिट सी में। यूनिट डी इज अबाउट ओपन एक्सेस पब्लिकेशन एंड इनिशिएटिव। ओके, देन रिसोर्सेज हम कहाँ से सर्च कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स कौन कौन से हैं, ओके। हमें प्लीज जो भी है प्लीज टर्न ऑफ योर माइक एवरीबॉडी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। हेलो, या हाँ जी। सो हमने रिसर्च करनी है, पढ़ना है, पेपर पढ़ना है, रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, तो जर्नल, प्रॉपर जर्नल कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, we'll get to that, okay, we'll learn about that thing also, that is in unit D. then unit E है हमारा database, indexing database है, citation database है, that is web of science and scopus। तो ये सब चीजें we will discuss everything in detail, all right। so आज start करते हैं with the philosophy, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी। ऑलराइट, सो आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, या सो फिलॉसफी में इंट्रोडक्शन देने से पहले एक पोएम के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, जो कि लिखी हुई है हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है, उन्होंने एक पोएम लिखी हुई है। सो पोएम ये है कि 3 लोगों को गोली लगी, एक के मुंह से निकला माओ, एक के मुंह से निकला राम और तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि 2 लोगों के पेट भरे हुए थे, ठीक है। तो फिलॉसफी में ये पोएम क्यों बताई आपको, ये पोएम, इतनी पोएम है ये, ठीक है, पोएम क्यों बताई आपको ये, देखो फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी तब निकलती है या फिलॉसफर आदमी तब बनता है जब उसका पेट भरा हो, ठीक है। तभी बेसिक एक वो भी है कि खाली पेट भजन ना होए गोपाला, ठीक है। तो फिलॉसफी, इंसान फिलॉसफी तभी करता है जब उसका पेट भरा हो, तभी ख्याल आते हैं, जब बेसिक नीड जो है इंसान की, खाना खाने की, जो पेट भरने की, वो फुलफिल होगी, तभी इंसान क्या करेगा, फिलॉसफी करेगा, ठीक है ना। फिलॉसफी हम पढ़ क्यों रहे हैं, ऑलराइट, आप सबने एडमिशन ली है पीएचडी में, ठीक है, आपने 10th में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है, ये सब 10th तक पढ़े होंगे। फिर उसके बाद जब 11th में एडमिशन ली तो साइंस हो गया कईयों का आर्ट्स हो गया, आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है। फिर कॉलेज में आ गए तो कॉलेज में पर्टिकुलरली बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। कई म्यूजिक में चले गए, कईयों ने पर्टिकुलरली लैंग्वेज ले ली, ठीक है, ये तो आपका ग्रेजुएशन हो गया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में एक पर्टिकुलर मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। अल्टीमेटली जब आप सबसे टॉप पे आए तो एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। और अगर अभी आपने एडमिशन लिए पीएचडी में तो डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। क्यों फिलॉसफी ही क्यों? क्योंकि फिलॉसफी क्या है, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हम नॉलेज, चीज़ें हम 10th 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक चीज़ों को क्या करते हैं, हम अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। बट फिलॉसफी हम कब करते हैं, आफ्टर गेटिंग द नॉलेज, ठीक है। नॉलेज अलग चीज़ है और विजडम अलग चीज़ है, ठीक है। नॉलेज मीन क्रैम करना, चीज़ें याद रखना। कई लोग होते हैं उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे हर एक कंट्री की झंडे याद हैं कि कैसे दिखते हैं वो, उससे क्या हो जाएगा, नथिंग, क्या हो जाएगा, झंडे तो वैसे ही रहेंगे। या मैं अगर कहूँ कि मुझे हर एक कंट्री की राजधानी पता है तो उससे क्या हो जाएगा, या हर एक राज्य की राजधानी पता है तो उससे क्या हो जाएगा, दैट इज जस्ट नॉलेज, ठीक है। विजडम क्या है, विजडम इज द अटमोस्ट पावरफुल थिंग। विजडम तब आता है जब आप चीजों को क्वेश्चन करना शुरू करते हो,
ठीक है। और पीएचडी में भी हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके एक पर्टिकुलर चीज, क्योंकि हमने देखो हमने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, 10th 12th में बहुत वास्ट चीजें पढ़ी हुई हैं, हर एक चीज कवर कर लेते हैं। हमने बायोलॉजी भी पढ़ी, हमने केमिस्ट्री भी पढ़ी, हमने फिजिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। ओवरऑल व्यू ले लिया सबका, वो नॉलेज लिया हमने। पीएचडी में आके हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज हम समझते हैं, एक पर्टिकुलर चीज, कोई भी एक चीज। जैसे हमें ह्यूमन बिहेवियर समझना है, ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर में भी पर्टिकुलरली कौन सी चीजें इंसान को खुश रखती हैं, उसी चीज में जाएंगे। हम पूरी एनाटमी तो नहीं समझेंगे इंसान की, पूरी बायोलॉजी नहीं समझेंगे, हम पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को पकड़ के उस पे एक्सटेंडेड नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट फिलॉसफी इज, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू समथिंग टेक्निकल। ये था आपका फिलॉसफी से रिलेटेड। अब फिलॉसफी जो है, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में पोएम बताई आपको। ये जो फिलॉसफी है ये आई कब से? देखो जो ह्यूमन है, ह्यूमन का जो अस्तित्व है, जो अब अपना अस्तित्व की बात करें तो हमारा अस्तित्व कब से है? लगभग कुछ लाख साल की बात है। और अगर हम ओवरऑल अस्तित्व की बात करें, जो ये ब्रह्मांड है या ये जो धरती है, सिर्फ धरती नहीं, ये पूरा कॉस्मोस है, ठीक है, जो पूरी खलकत है, पूरा जो सब कुछ हम देख पा रहे हैं या जो नहीं भी देख पा रहे हैं, उसका एग्जिस्टेंस कब से है? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये लगभग 350 बिलियन साल पहले, 3.5 लाख करोड़ साल पहले हुआ था, ठीक है। एक बिग बैंग हुआ था, उससे धरती और ये सब जो भी आपको दिख रहा है, चांद तारे और मल्टीपल जो यूनिवर्स है, ये एग्जिस्टेंस में आए। उसके बाद लगभग 200-250 मिलियन साल पहले जो है लाइफ एग्जिस्टेंस में आई। लाइफ भी कैसी? किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में, ओके। उसके बाद लगभग 12-13 लाख साल पहले कहीं ह्यूमंस की बात नहीं करूंगा, तो सॉरी नॉट ह्यूमंस, जो हमारे नियरेस्ट जो क्लोजेस्ट हमारे क्या लें, जैसे बंदर वगैरह हैं, ठीक है, चिंपैंजी वगैरह, ये जो हमसे क्लोजेस्ट हैं, जिनका डीएनए हमसे 99% मिलता है, वो एग्जिस्टेंस में आए। बंदर वगैरह नहीं, वो तो खैर वो साथ साथ में ही चल रहा है, जिनको कहते हैं कि होमो इरेक्टस या निएंडरथल्स, ये सब, ठीक है, ये सब एग्जिस्टेंस में आए। लेकिन वो भी क्या थे? वो भी फिलॉसफी नहीं करते थे। वो उनका मेन मोटिव क्या था? सर्वाइवल था, ठीक है, पेड़ों पे रहना, जंगलों में रहना, ठीक है। मेन उनका मोटिव, उनका दिमाग इतना ही चलता था कि अभी जो खाना खाना है या जो नेक्स्ट टाइम मील आएगी वो कैसे आएगी, शिकार से कैसे आएगी, कहाँ मिलेगा शिकार, ठीक है। और पहली सेटलमेंट जब हुई आज से लगभग 5-6 लाख साल पहले, तब जाके इंसान ने जब खेती बाड़ी शुरू की, इंसान ने जब पेट भरने लगे, जब उनका मेन मोटिव जो था खाना खाने का, वो खत्म हो गया, ठीक है। उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचने लगा, ठीक है, जब खेती से उन्होंने भंडार भर लिए अपने, और उनको पता लग गया कि हाँ खेती से हम अपने भंडार भर सकते हैं और खाने की टेंशन खत्म हो गई, तब जाके उनके पास क्या हुआ? टाइम फ्री रहा, ठीक है। जब ये टाइम वेरिएबल उनके पास आ गया, फ्री टाइम वेरिएबल जब उनके पास आ गया, तब से फिलॉसफी शुरू हुई, ठीक है। और फिलॉसफी का जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार साल पहले की है, उससे ज़्यादा नहीं है। और मोस्टली कहने तो 5-7 हज़ार साल पहले की, ठीक है, उससे पहले। अब इतना बड़ा इतिहास रहा है धरती का या कॉस्मोस का 3.5 लाख करोड़ साल पहले, ठीक है। उसके बाद हम ह्यूमंस का कितना है, उसके बाद फिलॉसफी का कितना है, बिल्कुल एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। तो हमें फिलॉसफी में अगर जाए तो एक फिलॉसफर जो है उसको ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है। अगर किसी इंसान को हमने जाना है कि वो सबसे बड़ा फिलॉसफर है, तो वो यही कहेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है, ओके। दैट इज व्हाट फिलॉसफी इज। तो लेट्स गेट टू सम टेक्निकल पार्ट। ये तो था व्हाट फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी एग्जैक्टली अगर मैं समझाना चाहूँ फिलॉसफी एग्जैक्टली क्या है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके। सो सबसे पहले आते हैं हम डेफिनेशन पे, ठीक है। थोड़े टेक्निकल पार्ट पे चलते हैं। जो हम लेक्चर में कवर करेंगे वो है डेफिनेशन क्या है, ठीक है, नेचर क्या रहेगा, स्कोप क्या रहेगा, ब्रांचेस क्या क्या हैं, रोल्स क्या क्या हैं, और कंटेम्प्रेरी एग्जांपल लेंगे, ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है आई थिंक सबको? यस सर। ओके ग्रेट। सो अभी तक जो मैं कहा वो आर यू विद मी टिल नाउ?
आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, ठीक है। जब हम चीजों को इंक्वायरी करने लगे, ठीक है, जब हम क्वेश्चन करने लगे चीजों को। अब टीचर पढ़ा के चला गया कि टीचर हमें कुछ भी पढ़ा के चला गया, ठीक है, नंबर्स के बारे में पढ़ा के चला गया, वन प्लस टू इज इक्वल टू 3, ठीक है। नॉर्मल तो ज्ञान पाने के लिए तो ठीक है, 1 + 2 = 3 होता है। लेकिन जो फिलोसफर जो थिंकिंग रखेगा वो पूछेगा नंबर कहाँ से आए, ठीक है। अगर आप फिलोसफी में जानना चाहते हो तो आप क्वेश्चन करोगे, आप नंबर कहाँ से आए, और 1 + 2 3 होता ही क्यों है, 1 + 2 4 क्यों नहीं होता, ठीक है। दिस इज व्हाट फिलोसफी इज, मीन्स वी स्टार्ट क्वेश्चन एवरीथिंग, ठीक है। जब हम फिलोसफी में जाते हैं तो हमें पूरा दिमाग खोल के और हर एक चीज को एक खुले चश्मे से देखना है, ओके। हमें चीजों को एज इट इज देखना है, हमें जजमेंट नहीं करनी, चीजों को होने देना है और फिर क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ओके। दैट इज व्हाट फिलोसफी इज। सो डेफिनेशंस की बात कर लें, फिलोसफी जो है दैट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है, फिलो और सोफिया। फिलो मतलब लव ऑफ, सोफिया मीन नॉलेज, ठीक है। जब आपको ज्ञान से प्यार हो, ज्ञान खोजने में प्यार हो, ठीक है। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है फिलोसोफिया, ठीक है। मतलब कि जब आपको लव ऑफ विजडम, ठीक है, जब आप कोई चीज क्वेश्चन करें, ठीक है। फिलोसफी में बेसिकली हम करते क्या है, फंडामेंटल क्वेश्चन, जैसे कोई जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, नॉलेज के बारे में क्वेश्चन करते हैं, वैल्यूज, रीजनिंग करते हैं, ठीक है। साइंस में हम देखते हैं कि साइंस में फोकस किया जाता है चीज़ें कैसी हैं, हाउ, ठीक है, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। बट फिलोसफी में हम पूछते हैं व्हाई, व्हाट, ठीक है, और बेसिक लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मीन्स जिनके आंसर नहीं दिए गए। अगर पूछूं आपसे कि ये धरती, ये सभी कहाँ से आया, सबसे आसान जवाब क्या है कि भगवान ने, ठीक है, भगवान ने बनाया ये सब। ये सबसे बेसिक और आसान आंसर है, ठीक है। किसी से भी पूछोगे कि हाँ ये धरती और ये जितना भी कॉस्मोस आपको नजर आ रहा है, ये चांद तारे नजर आ रहे हैं, ये कैसे आए, ठीक है। तो सबसे सिंपल आंसर है कि भगवान ने बनाए। अब हम जो फिलोसफर होते हैं, हम भगवान का क्वेश्चन करते हैं कि हाँ भगवान है कौन, क्या वो मेल फीमेल है, कहाँ रहता कहाँ है, ठीक है, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे मन में ख्याल आया है। अब मन कहाँ है आपका, शरीर के अंदर है, दिमाग में है, कहाँ है, एग्जिस्टेंस कहाँ है मन की, ठीक है। दिस इज व्हाट फिलोसफी इज। सो इन फिलोसफी व्हाट वी डू, वी क्वेश्चन, हम पूछते हैं क्या और क्यों, ठीक है। हम ये नहीं पूछते कैसे, हम पूछते हैं क्या क्यों, ओके। नाउ मेन डेफिनेशन क्या है, जो उसमें क्या क्या है फिलोसफी की मेन डेफिनेशन, उसमें कि प्लेटो ने क्या कहा, फिलोसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू रीजन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब हम नॉलेज, ज्ञान अर्जन करते हैं रीजनिंग के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है, हम क्वेश्चन करने लगते हैं, दैट इज व्हाट फिलोसफी इज। एरिस्टोटल जो है उसने कहा था कि फिलोसफी बिगिंस इन वंडर, ठीक है, इट इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल एंड कॉजेस, ठीक है। फिलोसफी कैसे, वंडर, इट स्टार्ट विद वंडर, ठीक है। हम देखते हैं कि हाँ व्हाट, वाओ, हाउ, कैसे, क्यों, ठीक है। फिर है जैसे बार्टनार्ड रसल्स ने कहा था, द अटेम्प्ट टू आंसर अल्टीमेट क्वेश्चन क्रिटिकली नॉट केयरलेसली एज इन द ऑर्डिनरी लाइफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था भगवान का, ठीक है। नॉर्मल किसी से पूछोगे कैसे ये चीजें एग्जिस्टेंस में आई, ये सिंपल आंसर है, ठीक है। लेकिन फिलोसफर क्या है, हम क्रिटिकली आंसर क्वेश्चन करते हैं चीजों को और आंसर देने की कोशिश करते हैं, ओके। केयरलेसली नहीं, हाँ भगवान ने बनाई है धरती, क्यों भाई, भगवान को यही काम था, और कोई काम नहीं था, कुछ और भी बना सकता था भगवान, ठीक है। धरती क्यों बनाई, और धरती बनाई तो फिर पाप क्यों बनाए इतने सारे, पुण्य क्यों बनाए, ये पाप पुण्य होते क्या है, सही गलत क्या है, वी क्वेश्चन दीज थिंग्स, ओके। दिस इज व्हाट फिलोसफी इज। सो नाउ आगे है मॉडर्न व्यू। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू फिलोसफी क्या है, फिलोसफी है इट इज अ डिसिप्लिन इंक्वायरी इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। हम डिसिप्लिन इंक्वायरी करते हैं किसी चीज की एग्जिस्टेंस में, नॉलेज में, वैल्यूज में, रीजन में, माइंड में, लैंग्वेज में, ओके। दिस इज व्हाट फिलोसफी इज, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेचर क्या है फिलोसफी का, फिलोसफी क्या है, रिफ्लेक्टिव होती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव मीन्स हम लाइफ को इंटरप्रेट करते हैं, उसका मीनिंग, पर्पस और अल्टीमेट वैल्यू समझने की कोशिश करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कंपोनेंट में समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करते हैं। चीजों को एनालाइज करना मीन्स वी अंडरस्टैंड थिंग्स पार्ट बाय पार्ट, ओके। अच्छा, इंसान पैदा हो रहा है तो पैदा क्यों हो क्यों रहा है, क्या पर्पस क्या रहा है,
ठीक है। और अगर मान लो कोई पैदा हो रहा है, कई कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो मेंटली रिटार्ड होते हैं या उनका एक अंग नहीं होता है, तो उसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा है, भगवान ने ऐसा बनाया, ठीक है। तो व्हाट वी डू, कोई भी चीज होती है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, वी लाइक टू एनालाइज दोज थिंग्स एंड वी ब्रेक दोज कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज स्मॉल पार्ट्स पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। छोटी छोटी चीजें पार्ट में, बड़ी बड़ी चीजें जो उनको पार्ट में डिवाइड करके देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट फिलॉसफी इज, ओके। दूसरा है इट इज क्रिटिकल, ठीक है। वी क्वेश्चन ऑल assumptions, आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्म ऑफ एविडेंस। हर एक चीज को क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। बीइंग ए फिलोसफर, अगर कोई फिलोसफर है वो हर एक चीज को क्वेश्चन करेगा, अगर ये प्रोसेस है तो क्यों है, क्या रीजन है, ठीक है। कुछ भी हो रहा है, जो भी assumptions हैं हमारे दिमाग में, हम उसको क्वेश्चन करते हैं। दैट इज व्हाट फिलोसफी इज, ठीक है। तीसरा स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव मीन्स what it does, it deals with ultimate cause, ठीक है। ultimate causes, principle, reality जो कि beyond empirical verification है, उसकी beyond चीज़ें हम उसको verify करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो कि कई चीज़ें जो हैं जैसे मैंने आपको कहा कि अगर if I say कि मान लो अगर हमारे लिए भगवान, मान लो हम सबके लिए भगवान की एक इमेज है, ठीक है। एक इमेज है कि भगवान कैसे हैं, उनका नीला रंग है, ठीक है। कई अगर देवी देवताओं की बात कर लें तो उनके 8 भुजाएं हैं, ठीक है। एक भुजा में त्रिशूल पकड़ा है, एक भुजा में ये पकड़ा है, वो पकड़ा है। अगर यही क्वेश्चन, ये हमारी थिंकिंग है, ठीक है, भगवान को लेके। अगर यही क्वेश्चन मैं किसी भैंसे को पूछूं और मान लो अगर वो जवाब दे पाए, तो उसके लिए भगवान की इमेज क्या होगी। उसके लिए भगवान की इमेज, मान लो जैसे हमारे लिए भगवान की इमेज क्या है, उनके 4-5 सर हैं, ठीक है, बहुत सारी बाजुएं। तो भैंसे के लिए क्या होगी, भैंसे के लिए भगवान बहुत बड़ा भैंसा होगा, ठीक है, जिसके 5-6 सिर होंगे, ठीक है, 8-10 पैर होंगे, यही हो सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट फिलॉसफी इज। वी हम चीजें जो हैं, जो ऑब्जर्वेबल चीजें, उसके बियॉन्ड सोचने की कोशिश करते हैं, बीइंग ए फिलोसफर, ओके। नेक्स्ट नेचर ऑफ फिलॉसफी इज इट इज हम चीजें नेक्स्ट है रैशनल। सो rationality means rationality relies on logic and reason argument rather than authority, ठीक है। कुछ एक क्या है कि हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ यही होता है, ऐसे ही होता आ रहा है, या हमारे बड़े बूढ़ों ने कुछ बना दिया है, ऐसे ट्रेडिशन बना दी है, वही फॉलो करनी है। बट फिलोसफर क्या है, फिलोसफर लॉजिकल वे में क्वेश्चन करता है, ठीक है। जैसे अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो हम खाना खाते हैं स्टील की प्लेट्स पे, या प्लास्टिक आ गया आजकल, क्रॉकरी टाइप आ गया है, ठीक है। हमारे पुराने जो थे वो किस पे खाया करते थे, वो खाया करते थे केले के पत्ते पे, ठीक है। अब एक फिलोसफर क्या है, फिलोसफर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि केले के पत्ते पे क्यों खा रहे हैं भाई, कोई और पत्ता क्यों नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कोई धाम होती है तो उसमें पत्ते पे ही खाया जाता है, पर्टिकुलरली केले के पत्ते पे खाया जाता है। क्यों खाया जाता है, क्योंकि केले का पत्ता जो है दैट इज गुड फॉर हेल्थ, और उस पर जब गर्मा गर्म खाना पड़ता है तो उसमें से कुछ एक केमिकल रिलीज होते हैं जो कि आपका खाना पचाने में, ठीक है, हेल्प करते हैं, ओके। वी कैन डू दैट। अब वो केमिकल उसमें कहाँ से आए, वे भी क्वेश्चन हो सकता है। सो फिलोसफी क्या है, फिलोसफी इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, ओके, एंड ट्राई टू गेन द नॉलेज बियॉन्ड पर्टिकुलर जो नॉलेज अभी है आपके पास, उसके बियॉन्ड आप क्या है, नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हो, ओके, विजडम गेन करने की कोशिश करते हो, ओके। चलते हैं आगे। ये था आपका नेचर ऑफ फिलोसफी। फिर है स्कोप। तो स्कोप जो फिलॉसफी का है ना, दैट इज जो कि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, हमने कॉस्मोस की बात की, हमने हर एक सब्जेक्ट की बात की, हमने पोएम से समझा फिलॉसफी क्या है। तो फिलॉसफी का स्कोप जो है दैट इज वास्ट और यूनिवर्सल है, ठीक है। इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब मैंने आपको बताया कि हम पीएचडी करते हैं, तो डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी क्यों, ठीक है। डॉक्टरेट ऑफ क्या कहते हैं, मार्केटिंग होना चाहिए था, डॉक्टरेट ऑफ क्या कहते हैं, केमिस्ट्री होना चाहिए था, फिलॉसफी क्यों। सब्जेक्ट तो हमने कॉमर्स चूज किया है, या मार्केटिंग चूज किया है, या मैनेजमेंट चूज किया है, या केमिस्ट्री, फिजिक्स या लैंग्वेज चूज किया है, लेकिन उसमें फिलॉसफी क्यों, क्योंकि फिलॉसफी जो है इट हैज नो बाउंड्रीज, बिकॉज वी ट्राई टू एग्जामिन एवरीथिंग, ठीक है, इन इट्स अल्टीमेट टर्म, ठीक है।
इसमें ह्यूमन लाइफ हो गई, यूनिवर्स हो गया, गॉड और डिविनिटी हो गई, नॉलेज हो गया, मॉरलिटी हो गई, ब्यूटी हो गई, सोसाइटी हो गई, ठीक है। वी ट्राई टू वेरीफाई एवरीथिंग, ओके। हम रियलिटी और एग्जिस्टेंस दोनों को, व्हाट इज रियल, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है, ये सब स्कोप है, ठीक है। फिलोसफी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और एक 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 ये भी है, एक कहावत भी है, कहावत नहीं मतलब, फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ठीक है। सभी साइंसेस की मदर क्या है, फिलोसफी है। दैट इज वाई PhD, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्ट डॉक, होता है पोस्ट डॉक्टरेट, ठीक है। वो भी PhD मीन्स सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री, ठीक है, अल्टीमेट डिग्री जो है। क्योंकि हम चीज़ों को इंक्वायरी करते हैं, हम वी ट्राई टू पुट समथिंग न्यू, ठीक है, बाय आवर ऑब्जर्वेशन, बाय क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, वी ट्राई टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू। हम एक नया नॉलेज लेके आने की कोशिश करते हैं, नया विजडम लेके आने की कोशिश करते हैं, ओके। दैट इज वाई फिलोसफी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ओके। तो ये था स्कोप ऑफ फिलोसफी की कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, रियलिटी में, एग्जिस्टेंस में, नॉलेज में, वैल्यूज एंड मोरालिटी में, माइंड लैंग्वेज, ठीक है। माइंड एंड लैंग्वेज मीन्स कॉन्शियसनेस क्या है, साइंटिफिक थ्योरी में हम फिलोसफी यूज करते हैं, ओके। अभी तक आप एवरीथिंग यू आर गेटिंग, एम आई क्लियर टिल नाउ? अभी तक जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने समझा, आर वी क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, great. Thank you. Thank you for confirming. So, फिलोसफी का जो स्कोप है उसमें थ्योरेटिकल यानी कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल जो कि गाइडिंग कंडक्ट है, तो हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों में हम फिलोसफी का यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करती है जो कि अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस कल्चर, अक्रॉस नॉलेजेस जो है उनको एड्रेस करने की कोशिश करता है, ओके। दैट इज व्हाट फिलोसफी इज। कोर प्रिंसिपल जो है फिलोसफी का, इट इज व्हाट, इट इज वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि हमारी पर्सनल व्यू क्या है, और साथ में हम क्रिटिकली चीज़ों को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई भी नॉलेज है, कोई भी बिलीफ है, उसको और डीपली जाके समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग तो नया नॉलेज निकल के आता है, ठीक है। तब हम कह सकते हैं हमने PhD कर ली, ठीक है। कई बार हमें चीज़ें समझ नहीं आती किसी की, तो हम कहते हैं ना बहुत बड़ा फिलोसफर बना है। क्यों कहते हैं? बिकॉज हमें उसकी चीज़ें समझ नहीं आ रही, और वो जो जिस लेवल पे वो वाइब कर रहा है, जिस लेवल पे वो समझ रहा है चीज़ों को, इसलिए हम उसको फिलोसफर बोल रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट है कि और क्या होता है कोर कंसेप्ट में इसके फिलोसफी के। हम चीज़ें होलिस्टिक सेंस में समझने की कोशिश करते हैं। हम अपीयरेंस और रियलिटी के और ओपिनियन और नॉलेज के बीच में डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। जो है सामने दिख रहा है, क्या वही सच्चाई है, ठीक है। जो फिलोसफर होते हैं ना, एक अंग्रेजी की कहावत है, दे कैन रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। मतलब जो लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं फिलोसफर, ठीक है। और जैसे आपके गाने भी हैं बहुत सारे, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ठीक है। तो जो फिलोसफर होता है ना, वो हंसी के पीछे जो परेशानी है, जो दर्द है, वो भी समझता है, ठीक है। दिस इज व्हाट फिलोसफी इज, ठीक है। दिस इज ऑल एसेंस ऑफ फिलोसफी, ठीक है। जो गाने आप लिखे जाते हैं, जो आप गाने सुनते हो, ठीक है, कभी थोड़ा फिलोसफिकल माइंड से गाने सुनो, ठीक है। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी फिलोसफी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। दिस इज ऑल फिलोसफी, ओके। नेक्स्ट इज ब्रांचेस। क्या क्या है ब्रांचेस फिलोसफी की? तो फिलोसफी क्या है, बहुत सारे कोर ब्रांचेस हैं उसके, ठीक है। मेन जो है, मेन 4 से 7-8 जो है, लगभग कई जगह आपको 4 बताई गई होंगी इसकी ब्रांचेस, कई जगह 7, कई जगह 8। तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। ब्रांचेस जो है 4 कोर ब्रांचेस है उसकी, ठीक है। सबसे है पहली, दैट इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना, जो समझ नहीं आ रहा है ना, दैट इज मेटाफिजिक्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं गॉड की, ठीक है, उसका जवाब नॉर्मल आदमी नहीं दे पा रहा है कि गॉड कैसा है, गॉड कैसा दिखता होगा, भगवान कैसा दिखता होगा, क्या वो मेल है, फीमेल है, ठीक है। ऐसे तो हम जनरली कहते हैं, रब्बा तू आ की किता, तू मतलब तूने क्या किया भगवान ही, तूने क्या किया। हम मेनली क्या लेते हैं,
मेल एनर्जी समझने की कोशिश करते हैं, बट अगर और डीप डाउन अगर हम जाएं तो इट्स नॉट मेल नॉट फीमेल, ठीक है। और बहुत सारे जो भजन कीर्तन होते हैं या कुछ हमारे जैसे एक ओमकार है उसमें, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें बड़ी डीपली समझाई गई हैं। अगर कोई रटना चाहे रट तो लेगा आसानी से, बट कोई एक एक लाइन अगर पढ़े और उसको समझने की कोशिश करे, इट विल ट्राई, वो उसको समझ आएगा कि सिर्फ यहाँ पे जेंडर की बात नहीं है। भगवान जेंडर में हम भगवान को नहीं बांध सकते, हम किसी चीज में नहीं बांध सकते, ठीक है, हम दिमाग में भी नहीं बांध सकते भगवान को। इट इज भगवान जो है बियॉन्ड दैट, ठीक है। दिस इज व्हाट फिलॉसफी इज। तो सबसे पहला है मेटाफिजिक्स, ठीक है, ब्रांच पहली जो है फिलॉसफी की, दैट इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स को हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, एग्जिस्टेंस, बीइंग एंड द यूनिवर्स, ठीक है। फंडामेंटल नेचर जो है रियलिटी का, एग्जिस्टेंस का, ह्यूमन बीइंग का, यूनिवर्स का, ठीक है, ये आता है आपका मेटाफिजिक्स में, ठीक है। इसमें मेन क्वेश्चन जो हम पूछते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि व्हाट इज रियल, रियलिटी क्या है, क्या भगवान एग्जिस्ट करता है, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या नेचर, टाइम का नेचर क्या है, स्पेस का नेचर क्या है, सब्सटेंसेस क्या है, ठीक है। एक साइंस में एक चीज है कि हम किसी को टच करते हैं, अभी मान लीजिए आपके हाथ में फोन है तो आप टच करके उसको उठा रहे हैं, बट साइंस में क्या है, हम किससे बने हुए हैं, एटम्स वगैरह से बने हैं। एटम्स कभी आपस में टच नहीं करते हैं, ठीक है, ये जो इल्यूजन है ये, ठीक है। वी कैन नॉट टच एनीथिंग, ठीक है, कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी को कभी टच कर ही नहीं सकता, जो रियलिटी है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। और क्या होता है मेटाफिजिक्स में, इट एक्सप्लोर फ्री विल्स वर्सेस डिटर्मिनिज्म एंड माइंड बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपका फ्री विल को और डिटर्मिनिज्म को एक्सप्लोर करता है, और माइंड बॉडी ये सब जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर करता है। सेकंड ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इज एपिस्टेमोलॉजी। ओके, एपिस्टेमोलॉजी है, इट इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज। व्हाट इट डज, इट एग्जामिन द नेचर, ओरिजिन, स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये जो नॉलेज है, जो भी नॉलेज है, उसका नेचर समझने की कोशिश करता है, वो नॉलेज आया कहाँ से, उसके ओरिजिनल को समझने की कोशिश करता है, उस नॉलेज का स्कोप क्या है। कोई भी नॉलेज हो सकता है, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव नॉलेज हो सकता है, आपका रिलीजियस नॉलेज हो सकता है, एपिस्टेमोलॉजी वो सब है, ठीक है। थैंक यू मैम। हेलो हेलो, हाँ जी, हरनैन सिंह जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। हेलो हरनारायण सिंह जी, काइंडली टर्न ऑफ योर माइक, थैंक यू। यस, मूविंग फॉरवर्ड, सो नेक्स्ट जो ब्रांच थी फिलॉसफी की, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। इसमें होता क्या है, वी एग्जामिन द नेचर, ओरिजिन, स्कोप एंड लिमिट ऑफ नॉलेज, ठीक है। कोई भी नॉलेज है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर है, कोई भी चीज है, हम उसके मेन नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ दैट नॉलेज, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ दैट सब्जेक्ट, ठीक है। कुछ भी हो सकता है वो, आपके वेद है, शास्त्र है, योगा है, ठीक है, आपकी साइंस है, फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, एवरीथिंग। वी ट्राई टू एग्जामिन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, we try to understand the origin of that particular subject, we try to understand the scope, we try to understand the limit of the knowledge, okay। अब इसमें क्वेश्चंस क्या, की क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं एपिस्टेमोलॉजी में, वो है कि हम क्या जान सकते हैं, व्हाट कैन वी नो, हाउ डू वी नो इट, हम कैसे उस चीज को जान सकते हैं, परसेप्शन के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, ठीक है। कोई भी नॉलेज अगर हमने गेन करना है तो उसके यही मेन वेज हैं जानने के, परसेप्शन के थ्रू हम परसीव कर लेते हैं, रीजनिंग के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, या उसको पढ़ के, ओके। फिर रेशनलिज्म के थ्रू, ओके। तो ये था आपका एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी, ठीक है। एक्सियोलॉजी होता है आपका वैल्यू थ्योरी, ठीक है, ओके। एक्सियोलॉजी या वैल्यू थ्योरी बोलो, यहाँ पे पीपीटी में आपको दिख रहा होगा एथिक्स, एथिक्स भी ब्रांच है, ठीक है। एथिक्स जो हम आगे भी पढ़ेंगे रिसर्च में, एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स का मतलब कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मॉरल प्रिंसिपल है, क्या जो हम कर रहे हैं क्या वो राइट है, क्या या रॉन्ग है, ठीक है। बहुत सारे कल्चर में एक पर्टिकुलर चीज राइट हो सकती है, बट दूसरे कल्चर में वो रॉन्ग हो सकती है, ठीक है, ओके। कई
कई हमारे यहाँ तो वेजिटेरियन होते हैं, इंडिया में मोस्टली वेजिटेरियन मिलते हैं, ठीक है। बट अगर उनको हम भेज दें यहाँ पे रशिया का एक, या नॉर्थ पोल पे भेज दें या साउथ पोल पे भेज दें, और उनको वहाँ पे सरवाइव करने को बोलें, ठीक है, सर्वाइवल का इशू आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या खाना पड़ेगा उनको? वहाँ पे घास फूस तो होती नहीं, ठीक है, फल सब्जियाँ तो मिलेंगी नहीं आपको। अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है वहाँ पे? जानवर का मांस ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट या रॉन्ग क्या है? राइट रॉन्ग चेंज होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हमें सब कुछ भरमार है चीज़ों की, हरी सब्जियों की, हम बोल सकते हैं ये नॉनवेज खाना गलत है। बट अगर हम वही बात रशिया, ये क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल पे रहने वाले लोगों के लिए या साउथ पोल पे रहने वाले लोगों के लिए बोलेंगे, तो वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो एथिक्स में क्या आता है? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। राइट और रॉन्ग क्या है? सिचुएशनल होता है। कई चीज़ें पर्टिकुलर चीज टाइम पे राइट हो सकती हैं, कई चीज़ें वही सेम चीज़ें पर्टिकुलर टाइम पे रॉन्ग हो सकती हैं, ठीक है। एथिक्स इज ऑल अबाउट मॉरल प्रिंसिपल, राइट रॉन्ग, ओके। फिर आता है लॉजिक, ठीक है। लॉजिक मीन्स हम चीज़ों को लॉजिकली विद वैलिड रीजन और आर्गुमेंटेशन के साथ चीज़ों को देखते हैं। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सॉरी, चीज़ें अगर हैं तो उसका वैलिड रीजन क्या हो सकता है, उसमें आर्गुमेंटेशन हो सकती है कि नहीं। देन आता है आपका एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में आपका आता है इट इज रिगार्डिंग ब्यूटी, आर्ट एंड टेस्ट, ठीक है। इसको हम ये जो लॉजिक और एथिक्स है ये आपका एक्सियोलॉजी में ही आता है, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ वैल्यू एंड वैल्यूएशन। इसमें एथिक्स आ गए यानी कि मॉरल वैल्यू, और एस्थेटिक्स यानी कि ब्यूटी एंड आर्ट, ठीक है। आपका लॉजिक और एस्थेटिक्स एक ही चीज में आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन हो सकता है दैट इज व्हाट इज गुड, व्हाट मेक समथिंग वैल्यूएबल। कौन सी चीज़ किसी चीज़ को वैल्यूएबल बना सकती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है। ये सब आता है आपका लॉजिक और एस्थेटिक में, जिसको हम एक साथ कह सकते हैं एक्सियोलॉजी, ओके। फिर आता है आपका लॉजिक में ही, लॉजिक में आपका आता है कि इट इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग, आर्गुमेंटेशन, इन्फ्रेंस, ठीक है। हम एनालाइज करते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं वैलिड एंड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसमें आती है आपकी, सर्टेनिटी इसमें आती है, ठीक है, जो कि सभी फिलोसफिकल और साइंटिफिक इंक्वायरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉजिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लॉजिक जो है ओवरऑल हर एक ब्रांच पे इंक्लूड होगा आपका, ठीक है। मेटाफिजिक्स में एपिस्टेमोलॉजी, यहाँ लॉजिक हर जगह आप लगाते हो, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है आपकी? पॉलिटिकल फिलॉसफी ये कभी कभी हम इसको एक्सोलॉजी में भी डालते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम गवर्नमेंट, जस्टिस, राइट, पावर, सोसाइटी, ठीक है, ये सब वी ट्राई टू एग्जामिन दीज थिंग्स, ओके। ये तो थे आपके ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, जिसमें था मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक, ठीक है, ये सब था आपका, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट, अच्छा ये तो हमने देख लिया, ठीक है। ओके, आई विल सेंड दिस पीपीटी इनटू द ग्रुप, ओके। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। थैंक यू सर। नाउ अब आते हैं मेन चीज पे, फिलॉसफी का रोल क्या है रिसर्च में? सबसे बड़ा रोल ही फिलॉसफी का है, ठीक है। व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड द डिफाइंड नॉलेज, दिस इज व्हाट फिलॉसफी इज। जब हम जो नॉलेज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, तब हम कह सकते हैं वी आर बिकमिंग द फिलोसफर, ओके। तब हम कह सकते हैं कि हम डॉक्टरेट हैं, ओके। नाउ रोल क्या है फिलॉसफी का है रिसर्च में? सबसे पहला है फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन में क्या है कि हम क्या करते हैं, इट इज लाइक रिसर्च पैराडिम, ठीक है, जैसे पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, प्रैग्मेटिज्म, क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये सब जो थ्योरीज हैं रिसर्च के, जो ये पैराडिम्स हैं, ये टोटली फिलोसफिकल एजम्पशंस पे हैं अबाउट द रियलिटी, ठीक है। इट शेप्स व्हाट रिसर्च कंसीडर रियल एंड वर्थ स्टडिंग, ठीक है। ऑन्टोलॉजी फाउंडेशन में क्या है? पहला है कि ऑन्टोलॉजी फाउंडेशन में आता है कि रिसर्चर जो है
किस चीज़ को रियल मान रहा है और किस चीज़ को वर्थ स्टडिंग मान रहा है, कि हम या हमारा टाइम इज इट वर्थ आवर टाइम, ठीक है, क्या ये चीज़ स्टडी करने लायक है कि नहीं। तो आपका आ गया पहला, ठीक है, फर्स्ट रोल ऑफ फिलोसफी इन रिसर्च, ठीक है। कोई अगर चीज़ हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, कोई चीज़ स्टडी करना चाहते हैं, क्या वो चीज़ स्टडी करने लायक है कि नहीं। ओके, सो ये आपका आ गया पहला फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशनल। दूसरा है conceptual clarification. Okay. Logical, एक मिनट। Epistemology and research design. Research. Ethical framing. Ethical framing. Axiology, philosophy, ethical philosophy. ओके, आगे चलते हैं। पहला रोल था फाउंडेशनल, ठीक है। दूसरा है कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन। कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन में आपका क्या आता है कि फिलॉसफी जो है वो चीज़ों को या टर्म्स को प्रिसाइजली डिफाइन करने में हेल्प करती है, और कुछ अगर हिडन एजम्पशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और साइंटिफिक एम्बिग्विटी है अगर है कोई, ठीक है, कोई साइंटिफिक कंसेप्ट में एम्बिग्विटी है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद है नेक्स्ट रोल है क्रिटिकल असेसमेंट, ठीक है। क्रिटिकल असेसमेंट में क्या आता है आपका, ये हम रिसर्च मेथड्स को इवैल्यूएट करते हैं, एविडेंस स्टैंडर्ड को इवैल्यूएट करते हैं, पोटेंशियल अगर कुछ बायसनेस है उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एथिकल गाइडेंस। फिलॉसफी का नेक्स्ट रोल है एथिकल गाइडेंस। एथिकल गाइडेंस इट हेल्प्स इन इन्फॉर्मिंग रिसर्च एथिक। रिसर्च एथिक्स क्या है, ठीक है, रिसर्च होनी कैसे चाहिए, ठीक है, एक सही कंडक्ट कैसा होना चाहिए रिसर्च का। कई बार क्या होता है हम रिसर्च कर रहे हैं तो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, ठीक है, पेपर वगैरह छपवाना है हमें, रिसर्च पेपर, तो हम क्या करते हैं, खुद रिसर्च ना करके हम पैसे देके या कहीं से किसी को अपने फ्रेंड को बोल देंगे कि हाँ जी मेरा नाम भी डाल देना अपने रिसर्च पेपर में, ठीक है, हेल्प कर देना, या अपनी थीसिस किसी और से लिखवा लेंगे। सो दिस इज व्हाट एथिकल फ्रेमिंग इज या एथिकल गाइडेंस इज, ठीक है। सो व्हाट इट डज, इट इन्फॉर्म रिसर्च एथिक, इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारी बीइंग अ रिसर्चर क्या, बीइंग अ फिलोसोफर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे हम अपने रिसर्च को इंटीग्रिटी, रिसर्च इंटीग्रिटी कैसे फॉलो करनी है, रिसर्च एथिक्स क्या है। ओके, नेक्स्ट रोल ऑफ फिलोसफी इन रिसर्च इज इनोवेशन एंड डायलॉग, ठीक है। इनोवेशन एंड डायलॉग में क्या है, जो फिलोसोफर हैं वो नई थ्योरीज ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ओके, इंटरडिसिप्लिनरी थिंग्स, ठीक है, जैसे मैं फिजिक्स को सोशियोलॉजी को या अलग अलग जो भी डिसिप्लिन्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम वी ट्राई टू एस्टैब्लिश डायलॉग्स बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी, ठीक है, वी ट्राई टू एड्रेस बिगर पिक्चर, ठीक है, हम बड़ी चीज़ें, ठीक है, जैसे एक आज मैं पढ़ रहा था, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, उनको जेल हो गई, 1 साल वो जेल में रहे, ठीक है, तो जेल में रहे और एकांतवास में रहे वो 1 साल तक। तो जेल से बाहर आने के बाद उनकी क्या फिलॉसफी थी, उनकी फिलॉसफी थी कि ठीक है जो देश को आज़ाद कराना इस बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, जिसके लिए मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि ज्ञान हो जाना, ठीक है, ज्ञान चक्षु खुल जाना, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जो है वो 6 दिन तक घर छोड़ के गए, उसके बाद 6 दिन तक एक पेड़ के नीचे बैठे रहे, ठीक है, तपस्या करते रहे, फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको रियलाइजेशन हुई। बाबा नानक जी थे वो जंगल में चले गए 3 दिन तक, 3 दिन के बाद उनको रियलाइजेशन हुआ,
ठीक है। ये जो रियलाइजेशन है ये क्या है, ये अल्टीमेट जो उनको नॉलेज हुआ उसको बोलते हैं रिसर्च, सॉरी उसको बोलते हैं फिलॉसफी। ठीक है। नेक्स्ट, सो चीजें क्या है, व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि हमें चीजों को एक बिगर पिक्चर हमने देखनी है। ओके, सिर्फ यही नहीं, ये जो छोटा सा डेली का काम कर लिया, खाना पीना कर लिया, उसके बियॉन्ड हम पैदा क्यों हैं, ये चीजें, ये क्वेश्चन अगर पैदा हुए तो इसका रीजन क्या है, हमें अगर भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा तो भगवान का मोटिव क्या रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू सी द बिगर पिक्चर। ओके, ये तो थे आपके रोल ऑफ फिलॉसफी। ओके, एपिस्टेमोलॉजी, रिसर्च डिजाइन। ऑलराइट, तो ये था आपका फिलॉसफी से रिलेटेड। ठीक है, अब ये जो है दिस इज ऑल अबाउट द की फिलोसफर्स एंड द टाइमलाइन, किस टाइम पे कौन आया। ठीक है, ये सब बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, जैसे सोक्रेट्स, प्लाटो है, एरिस्टोटल है, डेस्क्रेट्स है, पाइथागोरस है। पाइथागोरस को हम मैथमेटिशियन मानते हैं, बट ही वाज फिलोसफर, जिसने पाइथागोरस थ्योरम दी है। we consider him a great mathematician, but he was a philosopher. Okay, all right. Okay, तो आई थिंक ये था आज के लिए। ऑल राइट, बाकी जो आज हमने देखा, एग्जैक्टली हमने क्या क्या देखा आज, थोड़ा एक रिव्यू हो जाए। ठीक है, फिलॉसफी के बारे में पढ़ा। फिलॉसफी मीन्स फिलॉसफी दो वर्ड से आया है, फिलो एंड सोफिया। ठीक है, लव फॉर विजडम, यानी कि नॉलेज के लिए जो प्यार है, नॉलेज नॉट नॉलेज, विजडम के लिए। ठीक है, नॉलेज तो नेक्स्ट स्टेप है, जो सबसे टॉप पे है दैट इज विजडम। ठीक है, तो जब आदमी नॉलेज की बियॉन्ड जाके चीजों को क्वेश्चन करने लगे, ठीक है, ही ट्राई टू सीक विजडम। ठीक है, परम सत्य या परम ज्ञान जिसको कहते हैं, उसकी खोज में निकल जाए, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। ठीक है, जो कि बड़े बड़े महात्माओं को जो हुआ है, 3 या तपस्या करने के बाद जो चीज उनको मिली, दैट इज विजडम। ठीक है, ज्ञान मिला उसको बोलते हैं फिलॉसफी। ओके, सो लव ऑफ विजडम इज कॉल्ड फिलॉसफी। ठीक है, फिर अलग अलग जो फिलोसफर थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं फिलॉसफी की। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू रीजन एंड रिफ्लेक्शन। रीजनिंग के थ्रू जब हम नॉलेज गेन करें, रिफ्लेक्शन के थ्रू नॉलेज गेन करें, दैट इज फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है? बिगन इन वंडर। ठीक है, हम बोलते हैं वाह ये क्या चीज़ है। ठीक है, एरिस्टोटल ने वैसे शुरू किया कि फिलॉसफी कैसे शुरू होती है? वंडर से। ठीक है, वी ट्राई टू वंडर की क्या है। ठीक है, इट इज अ साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल एंड कॉजेस। ठीक है, फिर बर्नार्ड रसल ने कहा कि द अटेम्प्ट टू आंसर अल्टीमेट क्वेश्चन क्रिटिकली। जब हम चीज़ों को अल्टीमेट क्वेश्चंस जो है उनको क्रिटिकली आंसर करने की कोशिश करें, या जो अल्टीमेट आंसर्स हैं उनको क्रिटिकली क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है, नॉट केयरलेसली, तो आपकी होगी फिलॉसफी। ठीक है, मॉडर्न व्यू में क्या है? डिसिप्लिन। इट इज अ डिसिप्लिन विच इज इंक्वायरी इनटू एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यू, रीजन, माइंड एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, और अब तो एआई और डेटा का काम है। ठीक है, बिग डेटा है। फिर नेचर पढ़ा हमने। नेचर क्या है? नेचर एनालिटिकल हो सकता है। ठीक है, चीज़ें हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को या कॉम्प्लेक्स जो थ्योरीज हैं, कॉम्प्लेक्स नॉलेज है, उसको ब्रेक डाउन करके एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, फिर उसके बाद क्रिटिकल होता है। ठीक है, वी क्वेश्चन ऑल द एजम्पशन, argument about those things and we try to form the evidence out of those arguments. फिर speculative होता है philosophy. ठीक है, we explore the realms which are beyond observation. ठीक है, हमारी जो नज़र है वो कुछ एक उसका एक पर्टिकुलर व्यू है। ठीक है, अब जैसे आपने पढ़ा होगा इंफ्रारेड चीज़ें, इंफ्रारेड कैमरे में अलग दिखती हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लेंस में अलग दिखती हैं। ठीक है, उसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक मैं पढ़ रहा था कहीं कि जो डॉगी होते हैं, ठीक है, डॉगी क्यों रोते हैं रात को?
कुत्ता रात को रोता है, हमने बड़ी बार सुना होगा कुत्ता रोता है। अब अलग अलग फिलॉसफी है हर एक की, ठीक है। कई बोलते हैं उनको भूत दिखते हैं, ठीक है। कई बोलते हैं कोई मरने वाला है इसलिए कुत्ता रो रहा है। बट साइंटिफिकली अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि कुत्तों की जो सुनने की जो ताकत होती है वो बियॉन्ड ह्यूमन, जो जितनी हम सुन सकते हैं उसके बियॉन्ड होता है। वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स भी सुन सकता है, ठीक है। तो उसको क्या क्या सुनाई देता है? उसको बहुत सारी चीजें सुनाई देती है। उसको धरती के नीचे जो हलचल हो रही है, ठीक है, जो प्लेट्स हमारी है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्लेट है वो हिल रही है, उसकी आवाज उसको सुनाई दे रही है। जो चूहे हैं, चूहे आपस में जो चू चू कर रहे होते हैं उसको वो सुनाई देता है, ठीक है। वो सब अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं, वो उसको सुनाई देती है, ठीक है। उसको जो ये सब चीजें परेशान करती है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आवाजें तो रात को बंद हो जाती हैं, ठीक है। हर एक हम ह्यूमन एक्टिविटी बंद हो जाती है, जानवर घूमना फिरना बंद कर देते हैं, लेकिन ये चूहे परेशान कर रहे हैं, नीचे धरती की आवाज हो रही है तो ये उसको परेशान करते हैं, इसलिए वो चिल्ला रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट स्पेक्युलेटिव इज, ठीक है। ये नेचर है फिलॉसफी का, ठीक है। वी ट्राई टू एक्सप्लोर रियल बियॉन्ड ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन के बियॉन्ड है उस चीजों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर नॉर्मेटिव है नेचर फिलॉसफी का, ठीक है। वी आस्क व्हाट ऑट टू बी, नॉट मेरली व्हाट इज, ठीक है। चीजें जो हो रही हैं हम सिर्फ उस पर नहीं देखते हैं, ये है क्यों, हम वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट फिलॉसफी इज, ठीक है। फिर हमने स्कोप देखा, तो स्कोप जो है अलग अलग है, ठीक है। हम ह्यूमन, उसमें ह्यूमन लाइफ है, रियलिटी एग्जिस्टेंस है, नॉलेज है, वैल्यू मोरालिटी है, माइंड लैंग्वेज है, ठीक है। अलग अलग जगह, हर जगह जो जो भी आप सामने एग्जिस्टेंस देख रहे हो या जो बियॉन्ड जो आईसाइट है उस सब में फिलॉसफी अप्लाई होती है। दैट इज व्हाट द स्कोप ऑफ फिलॉसफी इज, ओके। फिर हमने ब्रांचेस पढ़ी, तो अलग अलग ब्रांचेस हैं। मेटाफिजिक्स है, ओके। मेटाफिजिक्स में ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, आइडेंटिटी, परसिस्टेंस, फ्री विल, डिटर्मिनेशन, ये सब आते हैं, ठीक है। इसमें मेन क्वेश्चन जो होता है, हम पूछते हैं कि व्हाई एग्जिस्ट, व्हाट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट क्या कर रहा है, उसका नेचर क्या है, स्पेस टाइम कॉजेशन, ये देखते हैं, ठीक है। कुछ चीजें जो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है वो भी मेटाफिजिक्स में आ जाती है। एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी में कि हम पूछते हैं व्हाट इज नॉलेज, ठीक है, सोर्स ऑफ नॉलेज, टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है। हाउ इज कुछ एक बिलीफ है वो कैसे जस्टिफाइड है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है एथिक्स, यानी कि मॉरल फिलॉसफी, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फिर लॉजिक है, कुछ लॉजिक होते हैं डिडक्टिव, कुछ होते हैं इंडक्टिव, ठीक है। फिर एस्थेटिक एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी आ गई, ओके। फिलॉसफी ऑफ माइंड एंड फिलॉसफी ऑफ साइंस है फिर, ठीक है। ये थे आपके फिलॉसफी के ब्रांचेस। रोल क्या है फिलॉसफी का वो सब हमने अंडरस्टैंड किया, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे खत्म होता है अबाउट फिलॉसफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट एथिक्स, ओके। सो एनी क्वेश्चन, कुछ आप अपना ऐड करना चाहें? Anything you want to add? Anyone? This is all from my side. Anything you want to add? A career for exit full suffering. Hello, sir. Hello. Myself. Can I speak? Yeah, sure. Please. Myself, Naresh. जी. Please, बाकी अपना माइक ऑफ कर लें. हाँ जी. Can I speak, sir? Yes, please. In our previous class, which was on 10 o'clock, the madam said like this, no assumption and hypothecation should be used when everything should have a logic. So you don't have to assume something or hypothecation thinkings should not be there. You should do everything on some hard work. जी, जो जैसा रियलिटी दिख रहा है, we have to assume that and not assume, हमें चीजों को प्रत्यक्ष देखना है. Right, that's right. You got it. Now, in your class, you said like that assumptions पर question करते हैं. जी.
we question on assumptions. जी, assumptions पे, reality पे, जो चल रहा है, जो नहीं दिख रहा है, उस पे क्वेश्चन करते हैं जी। अगर assumption हम करेंगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? So you said like that we should go beyond observations. जी जी बिल्कुल, beyond Right observation। now you said like that we should go beyond observations. जी जी। Okay, so beyond observations, assumptions are there, hypothetical questions are there. जी। So which one we should follow? वी मस्ट फॉलो बोथ थिंग। देखिए, हमें फिलोसफर जो है वो क्या करता है कि वो जो चीजें रियलिटी में है वो भी समझता है, ठीक है, उनको भी क्वेश्चन करता है। जो ऑब्जर्वेशन दिख रही हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन भी हम कुछ बनाएंगे, ठीक है, हम जैसे चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी क्वेश्चन करना है हमें। ओके, और हमें उसे एक फिलोसफर की निगाह से टटोलना है विदाउट जजमेंट, ठीक है। जो चीजें जैसे हो रही हैं हमें क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है। ओके, हमें कंक्लूजन, बीइंग ए फिलोसफर, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन आ रहा है तो और क्वेश्चन अगर और बन रहे हैं तो वी आर बिकमिंग फिलोसफर, ठीक है। हमें जस्ट नॉलेज में एड अप करना है, क्वेश्चन करना भी एक नॉलेज में एडिशन है। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? यस सर। जी सर, आई फील कि फिलॉसफी जो है वो क्यूरियोसिटी पे ज्यादा डिपेंड करती है। जितनी हम क्यूरियोसिटी दिखाएंगे उतने हमारे अंदर क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो फिलॉसफी है ही क्वेश्चन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा समझाया हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट। एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। मैं ये जो पीपीटी है ये ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। ओके, थैंक यू। Okay, sir. Thank you so much. ओके सर, थैंक यू। Okay sir, have a nice day. Okay, thank you. Thank you so much, sir. नमस्कार। Namaskar.